Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your host, Aliza Naqvi, and I feel like the conversation we're about to have today, I am so excited. We have an English linguistics teacher. Yes, you heard me right. He has been in the profession for 10 years, and he is an IELTS instructor as well, been doing so for 6 years. So let's welcome Mr. Burhan. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I am good, thank you. How are you doing? Alhamdulillah, I'm doing great. Life is going well. Alhamdulillah. What's new these days? New is weather, first of all. Yes, we And, have winters in summers in November. Summers in November, and it's testing us to our limits and affecting our throats. Because being a teacher, we have to speak all the time to everybody, and it's quite sometimes frustrating. But Alhamdulillah, rest is fine. Classes are going on. I am enjoying. Students are learning. So it's fine. Wonderful. Okay, I want to get straight into it. एक ऐसी लैंग्वेज चूज करना जिससे ऑलरेडी मेजोरिटी स्टूडेंट्स भागते हो या मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसको एक लैंग्वेज या एक सब्जेक्ट भी कंसिडर ना करते हो. लाइक लैंग्वेज तो ओके इट इज़ वन, बट एक प्रॉपर सब्जेक्ट के इंग्लिश की क्लास हो. लाइक अगर मेरी भी इंग्लिश की क्लास है और व्हेन आई वाज इन स्कूल तो आई यूज्ड टू लव इट, बट ऑल ऑफ माय पीयर्स एंड ऑल ऑफ माय क्लासमेट्स दे वुड जस्ट एक होता है टाइम पास वाला पीरियड. एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना एंड उसको परस्यू करना एंड उसमें एक पैशन अपना फाइंड आउट करना, आई वांट टू नो ऑल अबाउट इट. To be very honest, it was accidental because when I completed my school, तो उस वक्त तक तो I never thought of it. I never even have any idea about teaching. उस वक्त क्या गोल था आपका? उस वक्त एक टिपिकल मिडिल क्लास बॉय की तरह I had a simple goal कि इंजीनियर बनना है. Okay. So, but right after completing my matriculation, like any normal kid, I had summers break, and my parents asked me कि भाई कुछ time को utilize करो अच्छे से. So I went in an institute, and it was a normal institute, local institute, and over there I wanted to complete some computer courses. ठीक है. मगर वहाँ पे उन्होंने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो लैंग्वेज का कोर्स भी ऑफर कर दिया. तो मैंने कहा ठीक है, फ्री में तो कोई मसला नहीं है. देन आई जॉइंड इट, एंड विद इन अ मंथ आई रियलाइज भाई ये तो कुछ मज़ा आ रहा है. अभी आप पढ़ रहे थे? अभी मैं पढ़ रहा था. तो ये मेरी लाइफ की एक, मुझे नहीं पता ये अच्छी चीज़ थी बुरी चीज़ थी, सिस्टम की ख़राबी थी या मेरी क्वालिटी थी, बट विद इन month and a half, or I think in 2 months, so my teacher, his name was Sir Suhail at that time, so he asked me कि भाई do you want a chance? मैंने कहा let's try. He gave me a badge. उस वक्त उनको ज़रूरत थी, and I started. And उसके बाद पता चला यार ये तो अच्छी चीज़ है, मज़ा आ रहा है. I started doing it. I completed my badge, and it was the first time, मतलब it was my first time in my entire life that I was teaching. और जब मेरा बैच एंड हुआ तो I didn't know my student gave a surprise birthday party to me. So like obviously I realized भाई I had influenced them somehow. And I still have that dictionary, that Cambridge dictionary they gifted me at that time. Wow. So the whole class surprisingly celebrated my birthday, and एक मैट्रिक किए हुए बच्चा ही था obviously. तो उनको नहीं रियलाइज हो रहा था ये कि उनके लिए तो मैं टीचर था. सो बस वहाँ से समझ में आया कि शायद इट्स माय थिंग. उनका एज ग्रुप क्या था? हाँ, यही अगली चीज़ थी जो मैं बता रहा था. दैट्स फैसिनेटिंग कि आई वाज इन मैट्रिक, एंड आई स्टिल रिमेंबर. चलें आपसे रिलेटेड, इन माई फर्स्ट बैच इन माई एंटायर लाइफ इसको मैंने पढ़ाया. अच्छा, मैं लैंग्वेज में होता ये है कि हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कोई फिक्स तो नहीं होता कि इंटर किए हुए लोग हैं या जी. तो देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज एन ECCA स्टूडेंट, एंड आई स्टिल रिमेंबर हर नेम. अब तो शायद उनसे कोई ना सलाम ना दुआ, काफ़ी पुरानी बात हो गई, 10 साल हो गए. तो हर नेम वाज फातिहा. इसीलिए याद है कि वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी भाई माशाल्लाह. मतलब आई यूज्ड टू फ्लेक्स अबाउट दिस कि भाई एंड इट इज फ्लेक्स वर्दी. बिल्कुल. तो बहरहाल इस तरह की एक जर्नी रही जिसमें एडल्ट्स भी आए, और अमूमन मेरे लिए चैलेंज था कि अपने से बड़े लोगों को पढ़ाना, ना सिर्फ एज में बड़े बल्कि क्वालिफिकेशन में भी ज़्यादा. इन दिस एंटायर जर्नी आई हैड, यू माइट फील स्ट्रेंज, बट आई हैड टॉट पीपल. जब मैंने अपना इंटर मुकम्मल किया तो उस वक्त आई वाज गिविंग ट्यूशन टू अ गाय हु वाज इन हिज BA इंग्लिश. तो आई वाज टीचिंग हिम. आई वाज इन माय सेकंड ईयर इंटरमीडिएट. तो उसमें देन आई रियलाइज़ कि भाई शायद ये कोई ऐसी चीज़ है.
और जहाँ तक ये बात आपने स्टार्टिंग में की कि यस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट फील्स लाइक दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इंग्लिश है सब्जेक्ट है. जो लोग अच्छे होते हैं दे टेक इट एन ईजी टास्क एंड दे बिलीव कि भाई इसमें आती है, कर लेंगे, हमें क्या मसला. और जो अच्छे नहीं होते वो खौफ की वजह से नहीं आगे बढ़ते. सो समहाउ आई थिंक आई प्लेड अ पार्ट इन ब्रिजिंग द गैप. जो लोग अच्छे थे उनके लिए चैलेंजिंग बनाया और जो लोग वीक थे उनके लिए मैंने उसे कंफर्टिंग करने की कोशिश की. और इन सब में मेरा जो गोल था, पैशन था, या जो मेरा एक ऐसे ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें मेरे 2 पैरामीटर फुलफिल हों. एक हलाल हो, दूसरा मज़ा आए. तो वो दोनों पूरे हो रहे थे. देन अल्हम्दुलिल्लाह आई कंटिन्यूड इट, स्टिल डूइंग इट. लेट्स सी कब तक चलता है. वंडरफुल. अच्छा, आपने ये मेंशन किया कि आपकी एक एसीसी स्टूडेंट भी थी, लाइक शी वाज एन एसीसी स्टूडेंट एंड यू वर टीचिंग हर. तो मुझे ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हो एंड अगर बिकॉज ऑब्वियसली द करिकुलम इज इन इंग्लिश, यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू गेट प्रोग्रेस इन इट. तो कितना ज़रूरी था प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होल्डर को in order to, because आपकी भी उस वक्त एज कम थी, तो in order to like evolve yourself sort of to come to their level and get rid of that generation gap and उनके level पे आके उनको समझाना. I think I was born old school, and maybe I'm not again appreciating or praising myself because I don't think so that it's something to flex, but I was ahead of my age. Maybe I was a bit early matured, so it was not a big deal. And another advantage I had at that time that मैं हमेशा अपनी एज से बड़ा नजर आता रहा हूँ. तो वो मेरे लिए फायदा रहा. हाँ. Off camera and I was like, I don't believe it. हाँ, nobody ever believed it. तो that really helped me out. अमूमन लोगों को ये कॉम्प्लेक्स में डालता है जी कि भाई मैं तो अपनी एज से बड़ा दिखता हूँ. Like I still remember स्कूल में when I was 12 years old, तो I was sent back from an all female section just because they thought I am quite like around 16 to 17 years old. Oh my god. So it was embarrassing. At that time I felt bad. Then I got used to it and then I decided भाई इसको तो मैंने ये weakness नहीं बनाना, इसका फ़ायदा उठाना है. Then I took advantage of it. And alhamdulillah फिर आसानी हुई. लोगों ने इतना सवाल नहीं किया because I never told them. In starting I never told them, वरना वो सीरियस नहीं लेते. और जो सवाल आपने कम्युनिकेशन की बात कही, सो फार अभी तक आज तक मेरे पास जो है, आज भी मेरी ऑडियंस वेरिएबल ही है, वेरीड है. तो एडल्ट्स आते हैं और अंग्रेज़ी का मामला कुछ ऐसा है, अब इसको हम अनफॉर्चुनेट कहें, रियलिटी कहें, हार्श रियलिटी कहें, कुछ भी कह लें, बट ये रियलिटी है आज के दौर में भी कि स्टेटस सिंबल है. एक्सेल करने के लिए आपको अंग्रेज़ी चाहिए होती है. आई वॉज गुड एट इट, सो आई टुक एडवांटेज ऑफ इट. बहुत सारी जगहों पर मुझसे बेहतर काबिल क्वालिफाइड लोग मौजूद थे, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, तो जब मैं कर सकता था तो इसी तरह दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए ये मसला होता था. तो अमूमन जो जैसे वो स्टूडेंट रहीं या इसके अलावा आगे भी मतलब मैनेजरियल लेवल के पोजीशंस पे लोग थे, इवन सम ऑफ देम वर वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स, तो अंग्रेज़ी उनका बड़ा वीक पॉइंट होता था. तो जिसकी वजह से दे फेल्ट कि भाई दे आर स्टक. एंड व्हेन दे इम्प्रूव्ड that aspect of their life or they learned the language, so they somehow excelled. तो इंग्लिश ज़रूरी है, तो उस ज़रूरत को मैंने महसूस किया. लोग कहते हैं ना कि आप नीड को आइडेंटिफाई कर लें. शायद somehow I identified the need and then I worked over it. I provided the solution and I made it easier for them, comforting for them. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह चल गया ऐसे मामला. ओके. अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो इन योर जर्नी कि बिल्कुल आपको लगता हो कि इस एक्सपीरियंस ने या इस इंडिविजुअल ने आप लाइक इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू कि कुछ लाइक बिल्कुल ही अवेयर ना हो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ इट्स यूज्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लैक कर रहे हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो मेरी लाइफ में या मैंने किसी स्कूल स्टूडेंट को देखा ऐसा? जी जिसमें फिर आपने काम किया. अच्छा, बहुत सारे. अच्छा. हाँ, बट वो होता है कि कुछ आपको याद रह जाते हैं. मुझे नाम याद है, एक स्टूडेंट था मेरा, फैयाज नाम था उसका, और इंटीरियर से उसका ताल्लुक़ था. वेरी स्मार्ट किड माशाल्लाह, रिस्पेक्टफुल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट कर. बट ही वॉज लाइक, आई डोंट हैव अ वर्ड, बट ही वॉज लाइक दिस कि सर आई एम अ स्टूडेंट. नहीं आती थी ये कहनी.
ये कहना भी नहीं आता था। अच्छा वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज की वजह से वो मैट्रिक तो कर चुका था, इंटर भी किसी तरह उसके कुछ ताल्लुकात कर चुका था। अच्छा देन आई रियलाइज द गाय हैड पोटेंशियल। उसने बायोलॉजी साइंस फिजिक्स वगैरह सब उर्दू में पढ़ी थी अच्छा। एंड ही वाज वेरी गुड एट दैट इन कॉन्सेप्ट्स। यानी उससे आप मुझे थोड़ा सा काफ़ी पुरानी बात हो गई बट कुछ चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या उसने एक लफ्ज़ कहा था रेजोनेंस के लिए, उसने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने फिर सीखा भाई इससे क्या चीज़ है, कोई वर्ड था उर्दू का बाहर। तो आई लिटरली क्राइड, उसको पढ़ाने में मैं लिटरली रोया हूँ। वो स्टार्टिंग का टाइम था एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, आई क्राइड बिकॉज आई ट्राइड एवरी डे बेटा। This is very simple. You just need to say I for yourself, and then you just have to add verb in this, and then whatever information you need to add. बस इतना काम करना है। उसके साथ मैंने 4-5 महीने लगाए थे। उन 4-5 महीनों में ही वॉज लाइक एट दैट पॉइंट कि फिर आगे मुझे खुशी हुई कि उसने कर लिया भी। उसने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में ही पढ़ा। फिर पढ़ा ऑब्वियसली, और किस चीज़ में तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास, हम अपनी मदर टंग को आगे नहीं ज़्यादा एक्सेल कर सकते या उर्दू को या किसी और लैंग्वेज कर लिया। बट दैट वाज चैलेंजिंग, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और इस तरह के रिसेंटली आइट्स के अंदर तो अक्सर आ जाते हैं लोग। आइट्स के अंदर होता क्या है कि वो बड़ी नीड बेस्ड जर्नी होती है, उनका करियर, उनकी मैरिज लाइफ, समटाइम्स उनका फाइनेंशियल सब कुछ उस पर जो है वो स्टेक पर होते हैं और उनको आइट्स करना होता है। तो उसमें एक खातून थी, शी वॉज लाइक आई डोंट थिंक सो, आई बिलीव दैट शी वॉज एल्डर देन माई मदर एज वेल। और उनका केस भी इतना सीरियस था, उनके हस्बैंड पिछले 27 साल से यूके में थे, सॉरी 25 साल से 27 साल उनके शादी को हो गए थे और वो सिर्फ 2 साल उनके साथ रहे थे, उसके बाद से वो वहीं स्टक थे। उनके 2 बच्चे थे। 27 सालों के बाद शी हैड द चांस कि भाई वो किसी तरह कुछ मामला थे इमिग्रेशन के, वो क्लियर हो गए थे, नाउ शी वॉज एबल टू गो। उसके लिए उनका बीच में एक चैलेंज था, लाइफ स्किल का टेस्ट एक होता है आइल्स का, एक वेरिएशन होती है, वो देना था। अच्छा मैट्रिक किया हुआ था उन्होंने। शी केम टू मी एंड आई रिफ्यूज्ड कि मैम कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, बट शी रिक्वेस्टेड, पढ़ा उन्होंने कहा कुछ मैं आपने एडवांस क्यों कह दिया इम्पॉसिबल है? देखिए आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर इन माई लाइफ। आई डिसाइडेड आई वुड नेवर बी अ मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज आई थिंक या शायद it's better I would say I am kind of a demotivational speaker. I try my best, specifically I'm talking about IELTS journey. It's a bit different than other, like schooling में हम ऐसा नहीं करते, हम मोटिवेट करते हैं, हम encourage करते हैं, हम कहते हैं आप कर लेंगे। IELTS का मामला कुछ ऐसा होता है कि इसमें फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके। तो वो लोग कब सब कुछ टेक पे लगा के एक जर्नी पे आते हैं और वो मेरी एक यस की वेट कर रहे होते हैं कि ये कह देंगे तो शायद मैं सब कुछ कर दूंगा। तो समटाइम जैसे होता है ना कि डॉक्टर को यकीनन मैंने उनको डायरेक्टली अब्रप्टली नहीं कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, उनको काउंसिल किया, समझाया, लेकिन शी रिक्वेस्टेड। और उसमें मैं और मेजरी ऐड करूं तो मसला ये था कि वो जिस पोजीशन में मेरे पास आई थी, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। वो बेटा जा चुका था, बेटी 1 महीने के अंदर जा रही थी वाले साहब के पास, दे वर सेटल्ड, वो अकेली रह जाने वाली थी। शी वर्कड विद मी फॉर अ मंथ एंड इट्स क्वाइट ईजी टेस्ट, बहुत आसान होता है लाइफ स्किल का टेस्ट, बहुत ही बुनियादी सा टेस्ट होता है। शी फेल्ड। क्या होता है उस टेस्ट में? लाइक वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू शो द बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल हेलो हाय हाउ आर यू, माय डेली रूटीन, थोड़ी सी लिसनिंग करनी होती है, दैट्स इट। वो आइल्स जो टिपिकल आइल्स की तरह नहीं होता। ठीक है। शी फेल्ड, देन शी केम एंड शी क्राइड। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने फिर लिटरली आई प्रेड फॉर हर, नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगा अल्लाह करा देगा। फिर अगले टर्म में अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह वो निकली। तो ये 2 तो मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगे और मैं जब मौका मिलता है बताता हूँ। तो कभी कभार जिसको हम कह रहे हैं ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इंग्लिश को, और कभी कभार ये मैं मैसेज दूंगा उन बच्चों को जो अभी अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में हैं कि लैंग्वेज जो है ना, इट लुक्स समथिंग वेरी कैजुअल कैंडिड, पर कोई मसला ही नहीं है, आ जाएगी, खैर है, क्या होगा। मेरी मैथ्स यकीनन तमाम सब्जेक्ट्स अच्छे, लेकिन लैंग्वेज इज डायरेक्टली affiliated with your communication skills and you are nothing without communication skills in professional life. आपकी मार्कशीट, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मेहनत से पढ़ें, अच्छे ग्रेड्स लाएं, एक्सेल करें, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आपको 25% है, आपको 75% is how you convince people, how you persuade people, how you talk to them, how you fit in the environment, corporate environment, या अपना बिजनेस भी करते। तो अगर आप वहाँ लैंग्वेज में एक्सेल नहीं करते और अच्छे नहीं हैं, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टोरीज। मतलब इफ़ आई वांट टू मेक दिस अ सैड
podcast, so I can go on. I've seen a lot of experiences. लेकिन इसी के साथ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जब लोग कामयाब हो जाते हैं, मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाली भी लिस्ट बहुत लंबी है कि somehow I know I played a part in changing their life. Definitely you did. तो बस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों जगह, बट बहरहाल जिन लोगों के पास अभी चांस है तो स्पेसिफिकली टू देम कि इस चांस को अवेल कर लें ताकि आप बाद में मेरे जैसे लोगों को ना तलाश कर रहे हो जो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपकी वो 12 ईयर्स जर्नी 16 ईयर्स जर्नी को जो है वो कवर अप करा सकें, बिकॉज लिटरली इट्स इम्पॉसिबल। सो वो जो आपका सवाल था कि आपने इतना अब्रप्टली इतना डायरेक्टली क्यों कह दिया, तो मसला ये है कि कुछ चीज़ें ह्यूमनिस्टिक नहीं होती। एक 12 ईयर्स 16 ईयर्स की जर्नी को आप मार्केट तो कर सकते हैं, आप बोर्ड पे लिख के लगा दें 3 महीने में अंग्रेजी सीखें, तो उस लिहाज से तो आपको 15 दिन में डॉक्टर बनेंगे भी किताबें मिल जाती हैं, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। किसी को मार्केटिंग मैनिपुलेशन की जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें इनह्यूमन होती हैं, वो नहीं पॉसिबल होती। तो इसलिए हमें ये सख्त कदम उठाना पड़ता है आइट्स में स्पेशली। ओके, तो अगर हम बिल्कुल ही लाइक इफ वी लुक एट द फर्स्ट स्टेप, तो व्हाट डू यू फील लाइक आर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक स्किल्स इन मास्टरिंग इंग्लिश और एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर? Involve it in your life. Okay. I think I can summarize, it's the best way I can summarize it. Start involving it in your life. सुने, देखें, बोलें, सोचें और बात करें उस लैंग्वेज में जो सीखनी है, इंग्लिश ही नहीं। बिकॉज आइट्स की अगर मैं बात करूँ, मैं उससे ज़्यादा एफिलिएटेड हूँ, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग 4 स्किल चेक हो रहे हैं आपके, तो ये काम अपनी लाइफ में करें। बाकी किताबें पढ़ने की आदत डालें, किताब से ना भागें। अंग्रेजी में नहीं, लेकिन मैं अपनी स्कूलिंग तक उर्दू के अंदर काफ़ी किताब पढ़ने का शौकीन था। शायद ये वजह थी कि थोड़ी मैच्योरिटी भी आ गई थी। इट रियली हेल्प मी। और राइट नाउ भी मैं जिस स्कूल में हूँ, तो हम काफ़ी इस चीज़ को जो है इनकरेज करते हैं। हम लाइब्रेरी के अंदर बहुत स्ट्रांगली बच्चों को इनकरेज करते हैं कि किताबें पढ़ें, उसका हमें फ़ायदा होता है इवेंचुअली क्लास में। तो किताब को दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त होती है। और हाँ, अपनी पसंद की चीज़ पढ़ें, नो प्रॉब्लम, आपको वट एवर यू लाइक, बट पढ़ें ज़रूर। ये बातें ना करें कि मेरी एज का थोड़ी है, मतलब मुझे क्या, पॉलिटिक्स है इंटरेस्ट लें, साइंस है इंटरेस्ट लें, फैशन है इंटरेस्ट लें, इवन आप एंटरटेनमेंट है इंटरेस्ट लें, रिव्यूज़ पढ़ें। आपको मूवीज़ अच्छी लगती है, आपको डिस्कस करना पसंद है कि भाई फलाने एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ, फलाने एक्टर के साथ क्या हुआ, वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, गो फॉर इट, रीड। तो रीडिंग जो है ना, इट हैज़ अ मैजिकल इफेक्ट ऑन योर माइंड, ऑन योर स्किल्स। तो काफ़ी चीज़ें कवर अप कर लेती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये। उसके बाद आई एम सॉरी आई एम बीइंग हार्श राइट नाउ, बट बी रेडी टू गेट इंसल्टेड, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट फेयर which stands in your journey of excelling in a language, कि मैं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा। You're absolutely right. Everybody is afraid मैं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंसर टू योर क्वेश्चन इज कुछ नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सामने वाले को भी नहीं आती। जिस माशरे में हम यहाँ रहते हैं, जिससे आप डर रहे हैं, उसको भी नहीं आती होगी मोस्ट प्रॉब्ली। सो गो फॉर इट। तो फेस योर फियर्स और इसके लिए रेडी रहें। बाकी तो वो टेक्निकलिटी सब अपनी जगह हैं कि ग्रामर पे काम करें। और हाँ, मैं 21st सेंचुरी में आ गया हूँ, बहुत सारी रिसर्चेज आ गई हैं, तो मैं एक बात कहूँगा कि ट्रेडिशनल लर्निंग से बाहर निकलें। लर्निंग शुड नॉट बी डिपेंडेंट, इट शुड नॉट इवन बी डिपेंडेंट अपॉन योर टीचर। हो सकता है शायद मैं थोड़ी डिफरेंट बात करूँ, मगर हमारे निज़ाम तालीम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि हम स्कूल के अंदर बच्चों को 12 साल, या शायद आई शुड ऐड कॉलेज इन दैट, कि बच्चों को एक टीचर डिपेंडेंट पढ़ाई कराते हैं। टीचर विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट, व्हेन टू डू इट। बट डज इट हैपन इन रियल लाइफ? जस्ट इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई ये काम कैसे करना है। ही और शी ऑब्वियसली टेल यू, गाइड यू। दोबारा जाते हैं, थोड़ा सा फ़ोन करेंगे और कहेंगे ऐसे कर लो। तीसरी दफ़ा जा सकते हैं? नहीं जा सकते। चौथी दफ़ा नहीं तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। शायद कोई हेल्पफुल और आपके शायद कोई पक्का दोस्त होगा, शायद चले जाएं। उसके अलावा दिल क्वेश्चन, भाई क्या हो गया, यार मैच्योर, सीखो। तो जब रियल लाइफ में ऐसा होना है, तो पिछले 14 सालों के अंदर हमें क्यों सिखाया जा रहा है कि जो टीचर कहेगा वही करना है? वेयर इज़ योर लर्निंग? तो यू हैव टू बिकम अ सेल्फ लर्नर।
तो जब आप अपने अंदर सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी पैदा कर लेंगे, जो कि एवरी ह्यूमन हैज़, तो इंशाल्लाह फिर आप हर चीज़ सीख सकते हैं। स्पेसिफिकली लैंग्वेज की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे एंड दे आर ट्रू अबाउट दैट कि नहीं, वी डिडंट नीड अ टीचर, मुझे किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने लैंग्वेज सीख ली। जब इंस्टीट्यूट्स नहीं थे आज से चंद 100 साल पहले, तो इंसान तो हम ऐसे ही थे, दिमाग भी वैसे ही काम करता था, शायद रिसोर्सेज ना होने के बराबर थी आज के हिसाब से। सो वी हैड पीपल हु वर एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 6 लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेजेस, तो वो सेल्फ लर्नर्स बने। और स्पेशली 2024 है, तो आप किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट अगर अपनी आप लर्निंग को कर देते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम सेइंग दिस भाई, डोंट डिपेंड ऑन मी, आई शुड बी अ फैसिलिटेटर इन योर लाइफ, I should facilitate your learning journey and not dictate it. तो open up your mind, सीखें, आपको वीडियो से समझ में आता है, go for it, आप अपने दोस्त से सीखना चाहते हैं, सीखें, किताब से पढ़ लें, there are so many resources। अरे आज तो अब तो टेंशन भी नहीं ना, चैट जीपीटी से पूछ लें। तो I think all of these things are tools for your learning, utilize them, use them, exploit them as much as possible। तो yes, learning journey is easy। इंसान और गैर इंसान में फ़र्क ये है कि हम सीखने की सलाहियत रखते हैं और सब रखते हैं। आपके हो सकता है शायद आपके पास 2 हाथों में से 1 हाथ कम हो, 2 आँखों में से 1 आँख कम हो, पॉसिबल है, लेकिन इफ़ यू हैव अ स्पिरिट, अ सोल, तो यू आर अ लर्नर एंड यू विल बी अ लर्नर अंटिल यू डाई। एब्सोल्युटली। तो आज ही मैं स्कूल में मीटिंग में हमारे प्रिंसिपल ने बात की है, इट रियली हिट मी हार्ड कि यू आर अ लर्नर अंटिल यू आर अलाइव। तो जब तक आपके जिस्म में रूह है, आप सीख सकते हैं, तो ठीक है, कौन रोक रहा है? तो फ्री में सीख सकते हैं ना। मतलब तो आज के दौर में, आज से 600 साल पुराने स्टूडेंट को कोई आज का बच्चा पास में जाके कहता है कि मैं बड़े परेशानी है, सीखने के मौके नहीं है, वो इसके हाथ में जो कुछ होगा मार देगा उससे उठा के, कुछ लाए, नथिंग इज स्टॉपिंग यू, सेल्फ लर्नर नहीं है आप, तो वो बन जाए इंशाल्लाह। तो ACC हो, CA हो, एनी प्रोफेशनल थिंग, कोई भी लर्निंग, यू कैन डू इट। अब ये थोड़ा सा मोटिवेशनल लग रही होगी शायद मेरी बात, दैट्स ट्रू, दैट्स प्रूवन। आप रिसर्च से पढ़ लें अबाउट दिस, ये इसमें कोई 2 राय नहीं है, तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। वंडरफुल। अच्छा, यू रिसेंटली स्टार्टेड एट एन ओ लेवल स्कूल एज वेल, तो मुझे ये बताएं कि आर यू नाउ इन योर कैपेसिटी ट्राइंग टू चेंज दैट नॉर्म? आप ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आपस में बात करें इंग्लिश में एंड दे इंट्रोड्यूस whether it's any language, but they introduce and involve it in their own lives on a personal level. अच्छा, fortunately the organization that I'm part of is quite different and unique. In our school we don't follow conventional schooling, and we follow that personalized learning path. We have that, and our students are not judged on the basis of their grades, they're judged on the basis of their mastery. तो हम कोशिश करते हैं बच्चों में स्किल्स पे काम करें, थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिस है, एक तवील बात हो जाएगी वो बहरहाल। तो उसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह ताला को मेरी नीयत समझ में आई, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे इदारे में ही भेजा, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो वहाँ पे हम कन्वेंशनल स्कूलिंग को उस लिहाज से फॉलो नहीं करते, हम इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि एवरी ह्यूमन इज़ अ सेल्फ लर्नर। तो उस लिहाज से मुझे जो आपका सवाल था कि लैंग्वेज को किस तरह इनकलकेट कर सकता हूँ मैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को उसके पेस पे सिखाएं, हर स्टूडेंट को एक जैसी चीज़ ना सिखाएं। दैट्स द बिगेस्ट इशू वी हैव इन आवर स्कूलिंग, which I realized and which stopped me in joining a school teaching, like throughout my entire journey. I never wanted to join a school because I was never satisfied with this कि in my class there are 14, 15, 20 or 30 students and I have to teach all of them the same thing. How is that even possible? What if one of my kids is like weak in, for example, present tense, and the other one is extremely well in it and he just wants my attention towards some other aspect of language. He is good at listening, he is good at writing. तो मेरे पास ये इजाज़त होनी चाहिए कि मैं सबको उनके हिसाब से लेके चल सकूँ। I got that in my school. तो उसमें बहुत आसानी है, हम ये कोशिश करते हैं। फिर मेरे लिए नया एक्सपीरियंस ये रहा कि so far I have been teaching adults और a varied level of students, एज का बड़ा डिफरेंस रहा। अब मेरे पास वो बच्चे हैं मिडिल स्कूल तक, ओ लेवल्स तक, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों के साथ यही कोशिश करते हैं कि उनको जो क्या कहलाती है वो, देयर इज़ अ टर्म, आई एम सॉरी आई एम मिसिंग इट आउट राइट नाउ, तो उसका मकसद ये होता है कि आप लैंग्वेज को ना
स्ट्रेट पाथ में अगर मैं उसको अपनी ज़बान में कन्वे करने की कोशिश करूँ समराइज, तो आप स्ट्रेट पाथ में नहीं सिखा सकते. स्ट्रेट पाथ में हम सीखते हैं लैंग्वेज एक्चुअली, ओके. स्पेशली हम ये इंटर के स्टूडेंट, अभी तो ओ लेवल्स में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, सो मसला ये होता है कि आपको ग्रामर के रूल्स तो याद रहते हैं और आपको ये भी पता होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब अच्छे से पता होता है, बट व्हेन इट कम्स टू रियल इम्प्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज आप जीरो हैं. तो उसकी वजह ये होती है कि लैंग्वेज को मैथ्स की तरह नहीं सिखाया जा सकता. जैसे मुझे उर्दू सिखाई गई है वैसे ही मैं अंग्रेज़ी भी सीख सकता हूँ. तो इसीलिए इन स्टार्ट आई सेड कि इन्वॉल्व इट इन योर लाइफ. तो हम कोशिश करते हैं उनकी लाइफ में इन्वॉल्व करें. तो हम साइंस पढ़ा रहे हैं अगर, तो हम उस साइंस के साथ अंग्रेज़ी सिखा दें. ओके. अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसको रियलाइज़ ही ना हो, कुछ चीज़ें हाँ डायरेक्टली सिखा दें. तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके फ़ायदे भी नज़र आते हैं. बच्चा अपने पेस पे चल रहा होता है तो वो आज़ाद होता है अपने लाइफ को लीड करने में, कि वो खुद डिसाइड करता है हमारे यहाँ कि भाई उसको लगता है कि वो इन 2 एरियाज़, हमारी गाइडेंस के साथ, अगर उसे लगता है कि इन 2 एरियाज़ में वीक है तो वो पहले उस पर काम करे. तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह. तो इट्स गोइंग गुड सो फार. Okay, and as we come towards the end of this conversation, age has never been a restriction for you. अल्हम्दुलिल्लाह. So, if I was to ask you to give one advice to all the learners out there, no matter what scale they're at, what level they're at, or what degree they're pursuing, if one advice you could give to all the learners, what would it be? I think I would repeat the same thing. If you are alive, you can learn. It's one thing. So वो टिपिकल सी बात कि never feel ashamed and all, ये सब अपनी जगह पे है. बट शायद अगर मैं उसमें कुछ नया या यूनिक ऐड करना चाहूँ तो वो मैं वही कहूँगा कि देखें, आपको ईगो मारनी पड़ेगी. हम में से बहुत लोग अपनी सो कॉल्ड ईगो की वजह से अच्छे लर्नर नहीं बन पाते, स्पेशली एडल्ट्स. मैं इसको बल्कि सेपरेट कर देता हूँ. यंग लर्नर्स के लिए ये है कि भाई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट, यू हैव ओनली वन लाइफ, और ये गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा. तो अभी से अपनी जो ओल्डर जनरेशन है उसको देखें. आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं लर्निंग के, उन सबको एक्सप्लॉइट करें, सबको इस्तेमाल करें, ताकि जो है आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकें. ये ना सोचें कि जो मुझे सिखाया जा रहा है बस वही सही है. आप वो सही है बट और भी चीज़ें सही हैं, तो अपने होराइज़न को एक्सपेंड करें. अडल्ट्स के लिए ये है कि भाई आपकी तो गुजर गई है, तो सबसे पहले तो आप पछताना बंद करें इस चीज़ को. आप इसको चेंज नहीं कर सकते. रियलिस्टिक हो जाएं. अ लिटिल हार्श एडवाइस फॉर देम कि मान लें कि गुजर गई है, वो वापस नहीं आएगी, तो जो है उस पर गुजारा करें एंड अब की बेहतर बनाने पे कोशिश करें. तो भाई हमें तो अच्छा स्कूल नहीं मिला, हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे, हम गरीब थे, या हमारे साथ ये मसला था, मैं तो बीमार हो गया, और हमारा तो जो है बोर्ड ही अच्छा नहीं था. जो भी था ना गुजर गया. सो आई शुड से बी अ मैन और अ वुमन, ठीक है. सो जो है एंड गो फॉर इट. कर लें, कर सकते हैं, वरना आपको नहीं पता. और सबसे बड़ी बात, लास्ट आई वुड कंक्लूड वर्स्ट थिंग कैन हैपन दिस एंटायर जर्नी इज यू मे डाई, एंड इफ यू डाई सो नथिंग मैटर्स देन. फिर तो आखिरत की ज़िंदगी ना, तो इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा आपके साथ. गो फॉर इट. वो तो वैसे भी मरना है. सो ट्राई. बस ख्याल रखें किसी को तकलीफ ना पहुंचे आपकी जर्नी से, और सीखें. Wonderful. The worst thing that could happen वो आपने इतना normalize कर दिया. मर जाएंगे, क्या होगा, वो वैसे ही मर जाएंगे. Exactly. Thank उसको you आप so कंट्रोल नहीं कर much. सकते. This has been a lovely, enlightening conversation, and we wish you all the best for your journey. Thank you so Inshallah, may you continue to shape minds, Inshallah. and may you continue to be more involved in your life with your passion. And all the best. Thank you so much. Same from my side. I wish that the venture that you have started and जिसको आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें तरक्की दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचें, और जो आप प्रोफेशनल्स को लेकर आ रहे हैं, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसको आमूमी तौर पे सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता है, एक नए पर्सपेक्टिव को ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें कामयाब हों, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, आपका इदारा कामयाब हो इंशाल्लाह. Thank you so much. You're such a positive soul. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. Alright guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.